Hi friends, in this video we are going to learn about the consumption function. So let's start. As you all know, the demand for a good depend upon its price. Demand for a good depend upon its price means as the prices of the goods changes, the demand for goods also going to be changed. As you all know, if prices are going to rise, the demand for good is going to fall, and if prices are going to fall, the demand for a good is going to rise. It means there is an inverse relationship between the demand and the demand for a good and its price. Similarly, consumption of a community depend upon its level of income. It means if there is a change in a level of income, your consumption is also going to change. So we can say that consumption is a function of income. Remember here friends, the function represents the relationship between the two variable. Okay, here the function represents the relationship between the consumption and the income. So there is always a increase, consumption is always a increase in function of income. It means when your income is going to increase, your consumption is also going to increase. Okay, so there will be a positive relationship between the consumption and income. And remember here friends, the income is the independent variable and here the consumption is the dependent variable. It means any change in a consumption will due to इनकम. ठीक है, कंजम्पशन में कोई भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, वो इनकम की वजह से होगा. मतलब कि कंजम्पशन में जो चेंजेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इनकम के चेंजेस पे डिपेंड करेगा. ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट consumption is a function of income, where C stand for consumption, Y stand for income, and F represents the function. Okay, I hope you all understand that. ठीक है, so the consumption function relates the amount of consumption to the level of income. Okay, so first कंजम्पशन फंक्शन और अमाउंट ऑफ कंजम्पशन में क्या डिफरेंस होता है. द कंजम्पशन फंक्शन मीन्स द होल शेड्यूल विच शोज द कंजम्पशन एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, सो कंजम्पशन फंक्शन मीन्स, कंजम्पशन फंक्शन हमें क्या शो करता है, कंजम्पशन फंक्शन हमें शो करता है कि at a various level of income how much you are going to consume. For example, अगर मेरी income 10,000 है तो out of 10,000 I am going to consume 5,000. If my income is 20,000, out of 20,000 I am going to consume suppose 10,000. And if my income is 30,000, then out of 30,000 suppose I am going to consume 50,000. So when we are going to join all these points, it shows us at a various level of consumption how much we are going to consume. That is a consumption function. Okay, whereas the amount of consumption means the amount consumed at a specific level of income. What do you mean by amount of consumption? Amount of consumption is nothing but कि अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज़ है तो उसमें से मैं कितना कंज्यूम करूँगी. आई एम गोइंग टू सपोज आई एम गोइंग टू कंज्यूम 500 रुपीज़. सो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन शोइंग मी कि एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम मैं कितना कंज्यूम करूँगी. एंड एट द सेम टाइम कंजम्पशन फंक्शन शोइंग मी द कंजम्पशन एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम. ओके, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, when income rises, consumption also rises, but not as much as the income. ठीक है, so सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कंजम्पशन का, हम लोग ये अज्यूम करते हैं फॉर सपोज मेरी इनकम पहले 10,000 थी और मैं 5,000 कंज्यूम कर रही थी. ओके, अब मेरी इनकम 20,000 हो गई. इट मीन्स कि जो मेरी इनकम में जो इंक्रीज था वो कितने का हुआ, 10,000 रुपीज़ का हुआ. तो मेरे इनकम में जो चेंज हुआ है या फिर जो इंक्रीज हुआ है उसमें से मैं पूरा कंज्यूम नहीं कर लूँगी. अगर मेरी इनकम में 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं पूरा 10,000 कंज्यूम नहीं करूँगी. मैं उसमें से सपोज earlier I am consuming 5,000, now I am going to
टू कंज्यूम 10,000 एंड उस 20,000 में से मैं सपोज 10,000 कंज्यूम करूँगी और 10,000 सेव करूँगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है, बट उतनी इंक्रीज नहीं होती जितना इनकम इंक्रीज होती है। मतलब कि कंजम्पशन जो है वो इनकम के इक्वली इंक्रीज नहीं होती, उससे हमेशा कम ही इंक्रीज होती है। ओके, सो द कंजम्पशन फंक्शन डिमांड डिपेंड्स ऑन income and propensity to consume. Here what do you mean by propensity to consume? Propensity to consume means how much you are going to consume. Okay, how much you are going to consume. So the propensity to consume depends on the various factors such as price level, interest rate and stock of wealth. ठीक है, सो जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल पे कैसे डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जैसे ही हमारी प्राइस अगर किसी भी गुड की इंक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड होगी वो फॉल होगी। इट मीन्स हम लोग किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर दैट गुड विल बी गोइंग टू फॉल। हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है उस गुड के लिए कम हो जाती है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट पे कैसे डिपेंड करेगी? ऑफकोर्स जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लोग कम लोन डिमांड करते, कंज्यूमर्स आर गोइंग टू डिमांड लेस लोन्स। तो मतलब वो लोग जो अपना परचेज होता है वो डिले करते, वो लोग सोचते कि हाँ अभी तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी जब कम होगा तो फिर हम लोग लोन लेंगे और होम बाई करेंगे या फिर कार बाई करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट रेट, स्टॉक ऑफ वेल्थ, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। बट एज वी ऑल नो द केन्स वॉज कंसर्न विद द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। हम सब जानते हैं कि केन्स जो था वो हमेशा उसने क्या एक्सप्लेन किया था, उसने शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन किया था। और शॉर्ट रन में ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, प्राइस लेवल होता है, स्टॉक ऑफ वेल्थ है, ये ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ये बेसिकली कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो एज वी ऑल नो द केन्स वेर मोर कंसर्न अबाउट दी शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। और शॉर्ट रन में ये चीज़ें कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। तो इट मीन्स कि क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन कब चेंज होगा, जब करंट इनकम हमारी चेंज होगी तभी कंजम्पशन चेंज होगा। क्योंकि और ये प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, ये सब तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब ये सब चेंज नहीं होगा तो हमारा कंजम्पशन कैसे चेंज होगा? तो हमारा जो कंजम्पशन में जो चेंजेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो बेसिकली डिपेंड करेगा करंट इनकम पे। Therefore, Keynes consumption function depends on the current income. Okay, so Keynes function can be written as C equal to A plus by. ठीक है, so here C representing the consumption, Y representing the income, and A and B are the constant term. Constant term means constant मतलब they are not going to change in the short run, where A is the intercept term ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो तुम लोग इंटरसेप्ट टर्म मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट टर्म मतलब ये होता है कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी तो हम लोग कितना कंज्यूम करेंगे। एज यू ऑल नो कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी होगी तो भी हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा, बिकॉज फूड इज़ अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ए हमें क्या बताएगा? ए हमें बताएगा कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होगी तो हमारा कंजम्पशन हम लोग कितना कंज्यूम करेंगे। इट मीन्स ए इज़ अ इंटरसेप्ट टर्म। ये क्या बताता है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ज़ीरो। और यू कैन से दैट कि सपोज कि जब हमारा x ज़ीरो होता है इन अ ग्राफ तो y की क्या वैल्यू होती है, ओके। And B stand for the slope of the consumption function. What do you mean by slope of the consumption function? Slope का मतलब ये होता है कि slope हमें ये बताएगा
कि जब हमारी इनकम चेंज होगी तो हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज़ से चेंज होती है तो उस 1000 रुपीज़ में मैं कितना कंज्यूम करूँगी और कितना सेव करूँगी, वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बी बताएगा। इट मीन्स इट इज़ अ स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट द चेंज इन अ कंजम्पशन टू द चेंज इन अ इनकम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज पहले मेरी इनकम 10,000 थी, अब मेरी इनकम 20,000 होगी, तो पहले मैं 5,000 कंज्यूम कर रही थी, अब मैं 10,000 कंज्यूम करूँ। ठीक है, तो चेंज इन अ इनकम मेरा कितना हुआ, पहले मेरी अभी मेरी 20,000 है माइनस बाई पहले कितनी थी 10,000। पहले मैं कितना कंज्यूम कर रही थी, पहले मैं 5,000 कंज्यूम कर रही थी, अभी मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, अभी मैं 10,000 कंज्यूम कर रही हूँ। फिर ये कितना हुआ 10,000 माइनस 5,000, दिस रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन अ इनकम एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन अ कंजम्पशन एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन अ इनकम। ठीक है, सो क्या आएगा, ये आएगा 5,000, ये आएगा 10,000। सो ठीक है, तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी आई, मेरी ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आई हाफ। इट मीन्स माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.5। इट मीन्स क्या होगा, ये मुझे शो करेगा कि मेरी इनकम कितनी भी बढ़ेगी उसका हाफ मैं कंज्यूम करूंगी और उसमें से हाफ मैं सेव करूंगी। सो आई होप आप लोग को समझ में आया कि स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। ये मुझे बताएगा कि मेरी इनकम जब चेंज होगी तो उसमें से मैं कितना कंज्यूम करूंगी, ये मुझे क्या बताएगा, दैट इज अ स्लोप। ये बी भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज बी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये मुझे बताए, तो अगर मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है मतलब हाफ है, तो मेरी इनकम जितनी भी बनने दो उसमें से हमेशा मैं हाफ कंज्यूम करूँगी, हाफ शिफ्ट करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम अभी 1 लाख रुपीज़ हो गई, तो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है, तो इसका मतलब मैं हमेशा उसमें से 50,000 कंज्यूम करूँगी और 50,000 सेव करूँगी। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे कि हम लोग कंजम्पशन फंक्शन कैसे डिराइव करते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।